We have inferred the required input from the topic discussed by Mr. Tarun Gupta. We thank you for his precious time and sharing the valuable information. Now we move on to our second topic for discussion by Mr. Puneet Agarwal. The topic is assessment and scrutiny in GST, which is very important to be dealt by all CAs. I would request Vivek Neotia to welcome Mr. Agarwal by presenting him a gift of a little brief on Mr. Agarwal. He is a qualified chartered accountant and a practicing lawyer, partner at Athens Law Associates, Delhi. He was earlier with Lakshmi Kumaran and Siddharan and worked extensively on a number of indirect tax issues. Successfully argued a number of cases before high courts, including the recent judgment on Suresh Bansal, where it was held that service tax should not be charged on construction by real estate developers. He was also arguing counsel before the 9 members bench of SCMG and tax judgment. Thank you, ma'am. My very learned co-speaker Tarunji, senior members of the profession, younger members of the profession, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. It seems that in Kolkata the evening is not very good. We are all bothering you with GST provisions. One says you transition, other says you jump onto assessments. We are talking about pre-implementation and then directly to assessments. But I think as professionals it is a time to learn the rules of the new game. After all, this is going to be a new game. And it is only by these continuous discussions, deliberations, we also learn, all of us learn together. But I was really, when I was listening to Tarun's presentation, it was full of energy. He wants to tell everything, whatever he knows and whatever he has learned. He will also give you the checklists. I am telling you, you can all ask him after the session and he will give you all these checklists also. His only objective would be to help all of you and me also, because now I practice as a lawyer, so his ready-made work would help me also do the transitioning. But look at how meticulously the government is working. I ask you one simple question before proceeding with this. This is the future of, this is going to happen 2 years, 3 years later. But, and I will also talk about the professional opportunity. But I ask you a very simple question. When there is an old law and it is replaced by a new law, what are the type of provisions which are enacted? In other words, have any of you seen the transition of VAT? आप में से कोई VAT की प्रैक्टिस करते हैं? वैसे मैं कलकत्ता में किसी से पूछता हूँ तो सब बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं.
बट आप करते हैं। आपने ट्रांजिशन देखा था वैट का सेल्स टैक्स से, आपने देखा वहां पे किसी ने सोचा था ट्रांजिशन प्रोविजन बनाएंगे, कुछ करेंगे? एक क्रेडिट को ट्रांजिशन करने का प्रोविजन दिया था बस। दे आर थिंकिंग वेरी वेरी एक्सटेंसिवली। अदरवाइज whenever there is a repeal and reenactment, there is only one provision. That provision is called repeal and savings. और सारा दिमाग उसी पे लगता है। और जब भी रिपील के बाद इनएक्टमेंट रीइनएक्टमेंट होता है, उसके ऊपर इतनी लिटिगेशन होती है, हेलो सर, उसके बाद इतनी लिटिगेशन होती है और सब अपना सर दीवार के ऊपर फोड़ रहे होते हैं, लिटरली प्रैक्टिकली, कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिपील, ओल्ड लॉ वुड अप्लाई, न्यू लॉ वुड अप्लाई, व्हाट वुड हैपन। और अभी भी इन्होंने इतनी डिटेल में आपके साथ प्रोविजंस डिस्कस किए, और मैं दोबारा आई वुड अगेन कांग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही हैज इवन पुट द न्यू प्रोविजंस। इट इज अ टफ टास्क, इट इज नॉट इजी। 2-2:30 बजे तो लॉ ही आया मेरे ख्याल से, हाँ तरुण जी, 2-2:30 बजे आया। इन्होंने जब बताना शुरू किया तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया नीचे बैठे बैठे कि ये तो बहुत आगे निकल गए। बट लॉयर्स का क्या होता है, जनरली वो तो तब पढ़ते हैं जब सब कुछ निकल चुका होता है, गाड़ी निकल चुकी होती है। तो जो ये ट्रांजिशन है, अभी भी ऐसा होगा, बहुत से प्रोविजंस ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। आप सारे ट्रांजिशंस को तो नहीं सोच सकते ना कि क्या क्या होगा, और अगर कहीं कमी रहेगी तो ही वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड ही आल्सो पॉइंटेड आउट वन फील्ड व्हिच इज ओनली लेफ्ट ओपन टू अस, नॉट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू आर टॉकिंग अबाउट रिट्स। ही वाज सेइंग दैट अगर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इट वुड लैप्स। इफ इट लैप्सेस, देन द ओनली ऑप्शन इज हाई कोर्ट। यू हैव टू गो इन, बिकॉज़ हाई कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कोई डिनाई। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। You can always argue your right before the High Court. But in that case, what would happen? If there is a situation which is not covered by transitional provisions, then you are again square one. Then you go back to that repealing provision, जो पुराने लॉ में 140 सेक्शन था, पता नहीं नए लॉ में क्या आया है, and then you again break your head कि ऐसा नहीं है। What I am only trying to give you one message from my side is कि the transitional provisions, the existence of transitional provision or non-existence of transitional provision, that is not the end in itself. If there is no transitional provision, then the repeal provision would apply. And how would it apply? Very broadly, the transactions which pertain to the period prior to the new regime would continue under the old regime, and the transactions under the new regime would be covered by the new regime. This is one message, additional message, which I wanted to share, Tarunji. I don't know whether you agree with me or not, but that is one thing. Now let us come to assessments. It's a very, I would say, interesting mix of the provisions. When I say mix, what does it mean? You know how this GST law has been formulated? It has a very, very interesting history in the making. Because the making is still going on. And one thing I would like to tell all of you, ये तरुण जी ने जितने सेक्शन दिखाए ना, आप याद मत करना, क्योंकि अभी तो 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर एक्ट आएगा, तब तक आप पढ़ना बंद कर दोगे सेक्शन। वो उन्होंने इसलिए लिखा कि उन्हें याद रहे कि कौन सा सेक्शन पढ़ना है, आप मत याद करना उसको। But it, as I was mentioning, it has a very interesting history to offer. वो क्या है कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा आज तक कोई एग्जांपल इस्टेब्लिश नहीं हुआ हिंदुस्तान में। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां इतने बड़े स्केल पे आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज आइदर अ लॉ वुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट और अ लॉ वुड बी मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और हमारी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम थी इस वाले अमेंडमेंट एक्ट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ऐसा सोचा नहीं था। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है वो क्या है? देयर इज एन आर्टिकल 246 व्हिच सेज दैट द पावर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड हाउ इट, ये तो मैं बोल रहा हूं कि इट सेज सो, व्हाट इट सेज इज दैट व्हाटएवर आर द लिस्ट, व्हाटएवर आर द एंट्रीज इन लिस्ट 1 उस पे सेंटर लॉ बनाएगा, व्हाटएवर आर इन लिस्ट 2 उस पे स्टेट लॉ बनाएगा, एंड व्हाटएवर आर इन लिस्ट 3 उसमें दोनों में से कोई भी बना सकता है। बट अगर सेंटर ने बना दिया और दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंटर का प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं। मीनिंग देयर बाय इट इज अ यूनिटरी सुप्रीमेसी, सेंटर को सुप्रीमेसी। लेकिन लॉ मेकिंग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
को जो a type of law making where both of them come together, simultaneously make laws after consent with each other. This is a classic example of how our constitution is evolving. We as a society are evolving. It's a great constitutional achievement. I don't know whether we have really appreciated this fact, but you would not believe that for bringing the GST we had to bring a new constitutional concept, and we had to give a go by to the lists, क्योंकि लिस्ट में तो अकोमोडेट ही नहीं हो सकता जिसमें दोनों लॉ बनाए, लिस्ट कैन नॉट अकोमोडेट दैट सिचुएशन. तो वी हैड टू मेक अ स्पेशल आर्टिकल कॉल्ड 246 कैपिटल A which required both of them to make law in respect of GST, and 279 capital A which required to have a GST council which would decide on the policy issues, and then both of them make the law. So it's a classic example. And one more thing which is very very important for us professionals to understand. इंडस्ट्री को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है, इवॉल्व हो रहा है, उनको ये देखना धंधा क्या, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं. आज लॉ मेकिंग की पावर सिर्फ लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है. कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कोई बॉडी, वो भी सिलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड नहीं. जीएसटी काउंसिल क्या है? सारे स्टेट के और सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर मिलके डिसीजन ले रहे हैं. वो इलेक्टेड बॉडी थोड़ी है, पब्लिक में इलेक्ट नहीं करी, सिलेक्टेड है. वो सिलेक्टेड बॉडी इलेक्टेड बॉडी को ये नहीं कह सकती कि तुम यही करो, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसलिए ये नहीं लिखा कि वो मैंडेट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो रेकमेंड करेगी. अब ये बड़ा फाइन बैलेंस है, सारे मिलकर डिसाइड करेंगे और उसको हर एक को अपने अपने यहां अप्लाई करना है. तो वो कितनी बात मानेंगे ये इस बात पे भी बहुत डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो जाएंगी कोर्ट में अगर अल्टीमेटली लोगों ने डिविएट किया. तो ये एक, अब यहां से मैं आपको लेकर मैं शुरुआत करी थी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेकिंग है, इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है. ये लॉ बन कैसे रहा है? सारे स्टेट के कमिश्नर्स आर सिटिंग टुगेदर अलोंग विद द सेंटर टीम, और वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके के प्रोविजन बनाने चाहिए. तो आइडियली वो सब ये बैठ के बताते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा ये एक्सपीरियंस है. वैसे तो हम लोग ये सोचते हैं आइडियल सिनेरियो में कि सबसे अच्छे प्रोविजन डिस्कस करेंगे. वो बात अलग है कि जब वो डिस्कशन करने बैठते हैं तो वो कहते हैं तेरा सबसे खतरनाक है या मेरा सबसे खतरनाक है, जो सबसे खतरनाक है वो डाल दो. तो ये जो असेसमेंट के प्रोविजंस हैं, जब आप पढ़ेंगे इसको, अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में आप में से किसी ने एक्सटेंसिवली काम किया तो आप ये देखेंगे कि ये कई स्टेट लॉज और सेंटर लॉज को मिला करके बना है. सेंटर में ऐसे कई प्रोविजन थे जो कभी नहीं थे, और स्टेट में ऐसे प्रोविजंस कई इसमें आए हैं जीएसटी में जो कभी नहीं थे. उस सबको मिक्स करके एक अमेलगम बना के, सम बैड सम गुड, बट एक दो फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और एक दो फीचर्स बहुत ही खराब हैं. जो भी नाउ इट्स एन एक्सरसाइज ना, जब 30 लोग बैठे हैं तो फिर हु प्रिवेल्स, जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा या तो वो प्रिवेल करेगा, या जो सबसे पावरफुल होगा वो प्रिवेल करेगा. तो इट इज सम काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. लेट अस सी व्हाट इट इज, और इसमें अपना भी कुछ स्कोप डालें. और एक बात को हम हमेशा याद रखें जब जीएसटी की बात करें, अभी तक स्टेट वैट था वो स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर था, सेंट्रल एक्साइज था वो कुछ असेसीज के ऊपर लगता था जो मैन्युफैक्चर करते थे, सर्विस टैक्स था वो कुछ असेसीज के ऊपर जो सर्विस टैक्स थे. अब ये जो लॉ है, आप हमेशा इसको ऐसे देखें कि ये एक ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू एवरी असेसी, ये वो लॉ है. तो जब भी मैं कोई बात कह रहा हूं या तरुण कोई बात कह रहे हैं या आप आपस में जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द एक्सपेंस ऑफ इट. ये बहुत बड़ा फील्ड है आपके लिए. तो जैसे मैं आपको क्यों कह रहा हूं इस बात को कि अगर कोई ऑडिट का प्रोविजन इन्होंने दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो वो जो प्रोविजन है वो आपको ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अवेलेबल है. तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डेवलप योर स्किल्स and make your name in doing that activity, that you can reach out, and your reach now would not be limited, it would have unlimited extent. That is a very very important feature of GST. It can take your profession to all India level. That is what I am trying to say. अगर broadly आप देखें तो इसमें एक सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है,
एक प्रोविजनल असेसमेंट का प्रोविजन है, स्क्रूटनी असेसमेंट, ये मैं आपको ब्रॉडली दिखा रहा हूँ, बेस्ट जजमेंट, समरी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर आ जाएगा बेस्ट जजमेंट में, और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमने छुपा के रखा है, वो इसके बाद बताएंगे आपको कि वो प्रोविजन क्या है। वो छुपा के क्या रखा है, वो डालने वाले भूल गए हैं इधर डालना, तो इसीलिए वो छुपा हुआ है अभी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो दैट वुड कम आफ्टर दिस। तो लेट अस गो फर्दर। सेल्फ असेसमेंट, इसमें लॉ कितना भी पढ़ लीजिए, इट इज द सिंपलेस्ट, सब में वही बात लिखी हुई है। रिजीम तो जीएसटी का सेल्फ ही असेसमेंट होना है, राइट? अभी तो कोई लॉ ऐसा नहीं बचा ना जिसमें आप जाके पहले असेसमेंट करा के लाओगे फिर टैक्स पे करोगे, ऐसा तो है नहीं। सिर्फ कस्टम्स में है फिजिकल रिमूवल प्रोसीजर, बाकी तो नाउ एवरी लॉ इज सेल्फ असेसमेंट। तो दिस लॉ आल्सो सेज ease of assessment procedure, registered taxable person shall himself assess the tax payable and furnish a return for each tax period, right? तो ये कोई खास बात नहीं है। लेट अस मूव फर्दर। प्रोविजनल असेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट हमेशा से एक्साइज में, कस्टम्स में, सर्विस टैक्स में था। क्या? Where a person is unable to determine the value of goods or services or determine the rate of tax applicable on supply. कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के साथ अग्रीमेंट किया और जो प्राइस है वो क्या बेसिस पे डिटरमिन होना है आपस में, कि 1 महीने बाद कमोडिटी एक्सचेंज में जो प्राइस होगा हम वो प्राइस पे डीलिंग करेंगे। तो टैक्स तो मुझे आज देना है और प्राइस तय होगा 1 महीने बाद। तो लॉ क्या बोलता है कि ऐसे में यू कैन ऑप्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। उसका प्रोसीजर क्या होगा? A taxable person shall submit request to proper officer in writing giving reasons for payment of tax on provisional basis. Upon receipt of which proper officer may allow payment of tax on provisional basis at such rate or value specified by him. तो आपको एक रिक्वेस्ट करनी है उससे और रीजन के साथ। अभी भी होता है ऐसा, आप रिक्वेस्ट करिए, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। Taxable person is required to execute a bond and may also be required to execute surety or security. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क वो आपसे श्योरिटी सिक्योरिटी ले लेगा। प्रॉपर ऑफिसर शैल पास फाइनल असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय जेसी, एसी एटसेट्रा, एंड अल्टीमेटली इंटरेस्ट एप्लीकेबल और एडिशनल टैक्स विल बी पेएबल। अगर फाइनल असेसमेंट में डिफरेंस निकला तो टैक्स को आप विद इंटरेस्ट पे करो। तो ये वाले मैं और एग्जांपल देता हूं आपको कहां पर लगता है। आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करे, अब इंपोर्ट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आइटम हॉट रोल्ड है, स्टील, हॉट रोल्ड स्टील, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी 12% है, और अगर वो कोल्ड रोल्ड है तो 8% है। नाउ असेसी इज सेइंग इट इज कोल्ड रोल्ड, डिपार्टमेंट इज सेइंग इट इज हॉट रोल्ड। हाउ वुड इट बी डिटरमिन्ड? उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, लैब बताएगी हॉट रोल्ड है कि कोल्ड रोल्ड है, उसमें समय लगेगा। तो या तो असेसी कहे साहब पड़े रहने दो सामान को। व्हाट इज ऑप्शन नंबर 2? ही सेज प्लीज मेक अ प्रोविजनल असेसमेंट, गेट दिस वेरीफाइड, मेरे को अपना माल निकालने दो, मेरे से ड्यूटी ले लो, मेरे से जीएसटी ले लो एडवांस में, आप एक प्रोविजनल बेसिस पे। फाइनली जब आप असेसमेंट करोगे तो मैं लड़ता रहूंगा, आपकी बात मानूंगा तो ठीक है, नहीं मानूंगा तो मैं अपील में चला जाऊंगा। सो दोज आर द केसेस वेयर प्रोविजनल असेसमेंट वुड बी। तो ये वो केसेस हैं जो आपको इमीडिएटली जरूरत जिनकी पड़ सकती है। स्क्रूटिनी असेसमेंट, सेक्शन 45 पुराना लॉ का, सेक्शन को याद मत करिए बिल्कुल। स्क्रूटिनी आप सब समझते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही मैं कह रहा था, ये अमेलगम है। आप लोगों ने जनरली स्क्रूटिनी क्या देखी? इनकम टैक्स 143(3) नोटिस आया, आप अपना झोला लेके पहुंच गए, सारे हंस रहे हैं। मैं झोला कौन सा कह रहा हूं? किताबों का। सारे अपनी किताबें लेके पहुंच गए, मैं अपने शब्द ठीक कर लेता हूं, सारी अपनी किताबें लेके पहुंच गए। वो आपसे पूछता गया कुछ कुछ, आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहे। दिस इज हाउ स्क्रूटनी असेसमेंट्स हैव टिपिकली हैपेंड, और अल्टीमेटली he agrees on certain points and he disagrees on certain points and he frames a assessment order, right sir? सर अभी भी हंस रहे हैं। तो वो जो स्क्रूटनी असेसमेंट का तरीका है वो कैसा है?
एक्सचेंज का तरीका। उसने नोटिस दिया, आपने जवाब दे दिया, उसने कुछ फर्दर नोटिस दिया, आपने फिर जवाब दे दिया, फिर नोटिस दिया, फिर जवाब दे दिया। अल्टीमेटली ही वुड रिकॉर्ड समथिंग एंड पास इट ऑन। लेकिन टिपिकली सेंट्रल एक्साइज में बड़ा डिफरेंट तरीका फॉलो हुआ है। मैं बताता हूं वो कैसे हुआ है, एंड वो बहुत अच्छा तरीका है लॉ में, और वो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल की तरह काम करने का बड़ा अच्छा मौका देता है, और इंडस्ट्री के लिए वो बहुत यूजफुल है कि उसमें इश्यूज क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस विद दिस? सबसे पहले क्या है कि जब रिटर्न आपने फाइल करी तो ऑफिसर उसको स्क्रूटिनाइज करता है। लेट अस से उसको कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है उसमें, तो वो टैक्सेबल पर्सन को बता देगा कि भाई मेरे को लगता है इसमें ये गड़बड़ी है, आप इसको बता दो, मेरे को एक्सप्लेन कर दो। आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो। अभी तक क्या होता था, उसे एक्सप्लेनेशन समझ आई तो वो असेसमेंट कर देगा आपकी फेवर में, नहीं समझ आई तो ऑर्डर पास कर देगा अगेंस्ट में, राइट? लेकिन अब क्या होगा, जब वो आपको एक्सप्लेनेशन देने को कहेगा और आप दोगे, एंड इफ दैट एक्सप्लेनेशन इज फाउंड टू बी नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। अगर एक्सेप्टेबल है तो बात ही खत्म, वो कह देगा हाँ जी इट इज फाइन। बट अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। सी, इफ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश्ड विद इन 30 डेज, तो बात ही मैं दी ही नहीं, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी 30 दिन में। दूसरा, इफ taxable person accepts discrepancy but fails to take corrective action within a reasonable period, मैंने मान तो लिया, लेकिन in fact let me read it from here so that it is more clear. It says, in case no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by proper officer, or such further period has been permitted by him, or where taxable person after accepting the discrepancy failed to take the corrective measure within a reasonable period, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 49, 50 or 60, or proceed to determine the tax and other dues under section 51 capital A 6 or under 51B capital 6. तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको उसने बताया और आपने कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं, गए नहीं, आप गए तो टाइम लेते रहे, फिर भी नहीं दिया आपने, या उसने आपको बोला आप मान लिए लेकिन आपने उस डेफिशिएंसी को मेक गुड नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक असेसमेंट ऑर्डर इमीडिएटली पास कर देगा, फिर वो क्या करेगा, फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। ये स्टेज क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इसके बाद भी वो आपको 51 कैपिटल ए या 51 कैपिटल बी का प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगेन दिस सेक्शंस हैव ऑल बीन चेंज्ड नाउ। 51 कैपिटल ए और 51 कैपिटल बी का वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। वो क्या प्रोसीजर है मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। प्लस उसके पास ऑप्शन है कि वो आपका डिपार्टमेंटल ऑडिट इनिशिएट कर दे, स्पेशल ऑडिट इनिशिएट कर दे जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हैं वो, या फिर वो सर्च एंड सीजर की प्रोसीडिंग आगे कर दे। तो जैसे ही उसने आपको कम्युनिकेट किया, नाउ आवर रिस्पांसिबिलिटी वुड बी फाइल अप्रोप्रिएट रिप्लाई, एंड इफ ही स्टिल इज नॉट अग्रीएबल टू इट, से दैट वेरी क्लियरली दैट वी आल्सो डू नॉट अग्री विद यू, सो दैट दिस प्रोविजन गोes आउट ऑफ पिक्चर। बट इफ आई अग्री एंड डू नॉट फुल फॉलो, then there are some consequences. Let us move further. यहां पे मैं दोबारा आऊंगा 51 कैपिटल 51B, then I will link the two. Now there is a best judgment assessment for non-filer of return. इसमें कोई खास बात नहीं है. In order to assess tax liability of person who failed to furnish prescribed return, where registered taxable person fails to furnish the return, the proper officer may, after allowing period of 15 days from date of notice, proceed the tax liability to the best of his judgment. आपने रिटर्न भी नहीं भरी, आपको नोटिस दिया, आप उसमें डिटेल फाइल कर दो। अगर आप डिटेल फाइल कर दोगे तो उसके बेसिस पे बेस्ट जजमेंट हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो वो अपने मन से बेस्ट जजमेंट कर देगा। There is nothing great. The only important thing is time limit for issue of assessment order is, अब आप एक बार दोबारा देखिए सेक्शन का रेफरेंस क्या आया, 51 कैपिटल ए और 51 कैपिटल बी। ये मैं अभी आपसे, मैंने बोला आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट, assessment order made under this section shall be deemed as withdrawn where taxable person furnishes a valid return within 30 days of service of said assessment order. तो एक ऑप्शन दे दिया उसको, अगर वो रिटर्न भर देता है तो फिर ये विड्रॉ हो जाएगा, और रिटर्न भरेगा तो
जो नॉर्मल प्रोविजन है असेसमेंट के, वो नॉन फाइलर की बजाय फाइलिंग वाले के अंदर आ जाए। बेस्ट जजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अभी था रजिस्टर्ड बट नॉट फाइलिंग, ये अनरजिस्टर्ड। इसमें अगर कोई अनरजिस्टर्ड है और उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी, तब क्या होगा, जो पीरियड वो अनरजिस्टर्ड था उस पीरियड की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन पर्टिकुलर वो ले ले, जिस दिन लेगा उसकी बात नहीं, जिस दिन तक अनरजिस्टर्ड था तब तक ये सेक्शन अप्लाई होगा। उसको शो कॉज देंगे, बेस्ट जजमेंट पे उसकी लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे सुनने के बाद, और कितने दिन में, असेसमेंट ऑर्डर टू बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। यानी 5 साल का पीरियड नहीं है, एक्चुअली करीब 5.5 साल का पीरियड हो गया ऑर्डर पास करने के लिए। अगर मान लीजिए 16-17 का है, 16-17 की एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं 17 दिसंबर तक, दिसंबर 2017 तक, उसके 5 साल तक आप 16-17 का असेसमेंट कर सकते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन का, विच इज 31 दिसंबर 2022 तक उसका असेसमेंट हो सकता है। समरी असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट इन स्पेशल केसेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। नाउ दिस इज द ड्रैकोनियन क्लॉज। ये लाए वो सेल्स टैक्स से ढूंढ के वो खजाना, जिससे सबको बहुत काम मिलेगा, और खूब आर्बिट्ररी असेसमेंट्स होती हैं इसके अंदर। प्लीज सी व्हाट इट सेज। सर ये रिटेन किया है आपने, देखा क्या, देख पाए थे? अपना ही टॉपिक देख 48। हम लोग के लिए तो ये 2-3 साल बाद आएगा ना असेसमेंट। हाँ, अभी ट्रांजिशनिंग में नहीं आ रहा। ये तो आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अभी तो पता ही नहीं है, असेसमेंट उस पे नहीं पता है। The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice with the previous permission, proceed to assess tax liability of such person to protect the interest of revenue, and issue an assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so will adversely affect the interest of revenue. अब वर्ड्स देखिए क्या है, दोबारा सुनिए, मैंने जल्दी जल्दी बोले थे अभी। क्या पर्पस है इसका? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का इंटरेस्ट तो एक ही चीज में है। मेरे को तो आज तक कोई और इंटरेस्ट समझ नहीं आया रेवेन्यू का, पैसा कलेक्ट करने के अलावा। आप गए कभी सेल्स टैक्स के कमिश्नर वगैरह के कमरे में? जो गए वो एक ही चीज से मतलब है, पीछे बोर्ड लगा रखा है कि भाई टारगेट कितना आया और कितना पैसा आ गया, कि मतलब हमसे बात कोई करने से पहले देख लेना कितना शॉर्ट टारगेट है। वही पूरी इंटरेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है रेवेन्यू का। जो दूसरा इंटरेस्ट आप बात कर रहे हो लॉ में तो लिखा नहीं है, एक ही इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, वही इंटरेस्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या पर्पस? सिर्फ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और चाहिए क्या करने के लिए? ऑन एनी एविडेंस शोइंग अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस। ठीक है, परमिशन लेनी है एडिशनल जॉइंट की, वो उसका भी इंटरेस्ट और रेवेन्यू सेम ही है, देयर इज नो ग्रेट डिफरेंस। प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। और यहीं खत्म नहीं होता, यही हो जाता तो चलो कुछ बच जाते। ये भी लिख दिया, he can issue a assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so will adversely affect the interest of revenue। यानी बिना सुने भी कर दो, नोटिस वोटिस दिया, दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, असेसमेंट कर दो, बस ठोक दो असेसमेंट, क्योंकि क्या करना है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब इसमें कैसे मिसयूज होता है मैं आपको बताता हूं। वैसे आप में से जो सेल्स टैक्स लॉ में काम करते हैं वो कुछ कुछ देखे होंगे ऐसा यहाँ भी, बट हमारे यहाँ कैसे होता है, और ये टिपिकल बातें हैं यूपी की, बिहार की, ये वो टिपिकल स्टेट्स हैं। बिहार में आजकल पता है क्या हो रहा है? वो सेल्स टैक्स के नोटिस दे रहे हैं, किसको? कंसल्टिंग कंपनीज को। जब पूछा भाई क्यों दे रहे हो, कि भाई अगर नोटिस देंगे तो अगला 25% टैक्स तो जमा कराएगा, अपील की कंडीशन है, और नहीं कराएगा तो हम अटैच कर लेंगे, 25-50 तो हम ले ही आएंगे। जब ले आएंगे तो हमारे इस साल की रिसीट हो जाएगी, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग तो रिसीट बेसिस पे होती है, फिर हमें 5 साल तक कंपनसेशन मिलेगा, अगले साल वापस कर देंगे। तो हमारी कंपनसेशन की फिगर तो बढ़ गई। आपको मालूम है ना सेंटर को कंपनसेशन देना स्टेट्स को, तो वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो हर साल जो ये अभी स्टेट लेवल पे हो रहा है वो हर कमिश्नरेट में होता है। सारे लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा टारगेट है जो हमें पूरा करना है, हमें पता है कितना रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा, अब पूरा करना है तो कैसे करें? पहले एक इस असेसमेंट का, समरी असेसमेंट का नोटिस दे दो,
तो बड़ा आसान है। कैसे? आपने अपनी रिटर्न में दिखाया कि आपने परचेज किया 25 करोड़ का सामान, और जो आपके बिल्स हैं, वे बिल्स, वो दिखाते हैं 30 करोड़ की एंट्री। वे बिल में दिखाते हैं ना कि कितना का सामान आया। बंगाल में भी तो है वे बिल। तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। क्यों होगा? हो सकता है वो स्टॉक ट्रांसफर हो, उसके अलावा भी 100 तरह की बातें हो सकती है। हो सकता है रिटर्न के अंदर फ्रेट ऐड करना होता हो और वे बिल में मैंने ना कर रखा हो, कोई भी बात हो सकती है। तो हमने बोला साहब ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। लो जी, हमने एक्सप्लेनेशन दे दी, हमने जवाब दे दिया। अगर हाँ दे जाओ, कोई बात नहीं, जवाब देके रख लिया। अब क्या करेगा? 15 फरवरी को एक ऑर्डर पास कर देगा। ही विल से कि look, there is a difference, you have not explained. He will not even acknowledge your reply. There is a difference. Your books say 25 crore, your way bill say 5 crore. That means there are suppressed purchases. Suppressed purchases lead to an inference of suppressed sale. And if you are doing this in your books, way bill and difference, that means some तो कच्चा भी होगा कुछ। तो some sales, some purchases, तो वो सब ऐड करके you will make a fine purchase of 10-15 करोड़ का ऐड करके he will issue you a summary assessment. This is a practice. This is a practice which goes every year in the month of February, because you have to file appeal within 30 days. As soon as you file an appeal, you have to file a stay application. And if you don't get a stay within 30 days, they will attach your bank account. So when you are seeking a stay, the first appellate authority would say yes, great injustice has happened to you. Only pay 50% of this, and your appeal would be heard. Then you go to the second appeal. He will say, oh, great injustice, pay 25%. So ultimately he would settle by paying some 25% to the department, and his appeal would be kept for hearing. Next year it would be allowed. By that time you get the 25% amount deposited. So this is a provision which they have brought under this law as well. Now let us come to audit by tax authority. Now you would recall that there is a great debate going on. Every year we hear that they have brought a provision for audit under service tax, and some high court has quashed it. You heard it or not? Audit, no, department audit नहीं कर सकता, ऐसा होता रहा। उसका रीजन क्या था? इन्होंने कभी डिपार्टमेंटल ऑडिट को ढंग से प्रोवाइड ही नहीं किया सेक्शन में, वो रूल से चलाते जा रहे थे उसको। अभी नाउ दे हैव ब्रॉट अ प्रॉपर सेक्शन फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट। व्हाट इट सेज इज, वो तो मेगा कैप का डिसीजन के बाद हाँ आ गया ना। हाँ क्योंकि उसको तो सब स्ट्राइक डाउन हो गया था। यस दो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उसको, लेकिन वो बिना बात का झगड़ा था। जैसे ऑडिट प्रिस्क्राइब फॉर ऑल असेसीज to be conducted for business and at frequency to be prescribed। वो रूल में बताएंगे कि हर बिजनेस का कितने दिन में ऑडिट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एंड अब वो कहीं भी हो सकता है, वो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं और वो हमें अपने यहाँ आने को भी कर सकते हैं, बैग लेके कि आ जाओ भाई सामान ले आओ सारा। लेकिन अब पता नहीं कैसे होगा उनके, क्योंकि अकाउंट्स तो सब लोग कंप्यूटर में रखेंगे तो वो दिखाना मुश्किल होगा उसके यहाँ। पहले तो एक समय होता था सारे वो उठा के ट्रक लोड ले जाते थे, लो भाई देख लो। अब वो बट प्रोविजन है कि उनके यहाँ भी ऑडिट करा दो with prior intimation of at least 15 days। एक काम बहुत अच्छा किया, अब तक आपका एक्सपीरियंस होगा कि सर्विस टैक्स की ऑडिट में ऑडिट कर जाते हैं, फिर एक साल बाद फोन आता है आपकी ऑडिट में ना एक चीज रह गई थी वो और भेज दो, फिर आप वो भेज देते हो। उसके बाद बोलते हो भाई कोई रिपोर्ट तो भेज दो कि हमारा इतना लंबा चौड़ा ऑडिट किया आपने, पूरे सारे अकाउंट रिकॉर्ड ले गए, कोई रिपोर्ट तो दो। लेकिन आपने देखा होगा कोई रिपोर्ट नहीं देते हो, कोई क्लोजर भी नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा एक नोट सा बना के देते हैं आपने ये टैक्स नहीं दिया, ये टैक्स नहीं दिया, लेकिन ये नहीं कहते कि बाकी सब सही दिए। हमारा इंटरेस्ट तो उसमें है ना कि बाकी सब सही नहीं, वो नहीं कहते। अब बड़ा क्लियर बढ़िया प्रोविजन बना दिया। पहली बात तो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। आपने देखा कितना बिल्कुल शब्द ढूंढ के लाए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का क्या मतलब है, मैंने डिफाइन कर दिया उसको भी, कोई उसको हाई कोर्ट में ना चैलेंज कर दे कि जिस दिन आप रिकॉर्ड दे दोगे या वो एक्चुअली शुरू कर देंगे विच एवर इज लेटर, उस दिन के 3 months में ऑडिट करना है। वो ऑडिट 6 महीने और एक्सटेंड हो सकता है, उसको अथॉरिटी दी है किसी को ऑडिट एक्सटेंड करने की। हाँ, कमिश्नर
और वो रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, तो जस्टिसेबल तो हो गया, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो कि ये भैया कोई देयर वाज नो रीजन। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने अभी क्या बोला है, फाइंडिंग जो ऑडिट के हैं वो आपको उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों के साथ, भाई अगर सनवेट था मेरा तो आप उसे रिकॉर्ड करो, अगर आपको लगता है कोई लायबिलिटी है तो उसे भी रिकॉर्ड करो, तो सारी आपकी फाइंडिंग के साथ और रीजन हर एक बात का, ये नहीं बस लिख दिया कि ये नहीं दिया तुमने, क्यों नहीं दिया, रीजन बताओ आपके हिसाब से क्यों लगता है, वो सारा आप तुरंत दोगे। और अब देखिए अगर कोई शॉर्टफॉल है तो क्या बोलता है प्रोविजन, एक्शन शैल बी टेकन अंडर सेक्शन 51। तो अब एक चीज देख रहे हैं, सारी असेसमेंट एक्सेप्ट वो समरी असेसमेंट जो है, जो डेविल्स असेसमेंट है, उसको छोड़ के सारे केसेस अगर असेसमेंट करना है तो किधर लीड कर रहे हैं, सेक्शन 51 की टुवर्ड्स, और मैं दिखाऊंगा आपको, इट्स अ वेरी वेरी नाइस सेक्शन। उसके बाद ये आप लोगों के लिए to be conducted by external specialists, chartered accountant and cost accountants nominated by commissioner, और ये 49 के एडिशन में है, to be initiated when deputy assistant commissioner due to nature and complexity of a case and considering the interest of revenue find that the value is not declared correctly or credit is not availed within normal limits, the concerned officer may direct such person in writing to get his records and books of accounts verified by nominated professional। अब सबसे पहली बात यह है कि ये ऐसा ऑडिट नहीं है जो कभी भी करा सकते हो, 3 तरह के सिचुएशन फुलफिल होने चाहिए, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस होना चाहिए, और कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ही फाइंड दैट द वैल्यू इज नॉट डिक्लेयर्ड करेक्टली और क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड विद इन नॉर्मल लिमिट। तो 2 ही केसेस हैं, ऐसा नहीं कि हर केस में आप ये वाला ऑडिट रेफर कर सकते हो, ये केस सिर्फ तभी रेफर हो सकता है only if, न्यू लॉ भी यही कहता है, मैं एक बार चेक कर रहा था, only if value has not been correctly declared or the credit availed is not within normal limits। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 circumstances एग्जिस्ट करने चाहिए, तो वो ये बात को रिकॉर्ड करेगा 3 बातों को, पहला it is a special and complex case, दूसरा considering the interest of revenue, तीसरा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, उसमें किसी को क्या एक्सप्लेन करना है, तीसरा that the value is not declared correctly or credit is not availed within normal limits। If you think that the audit is going beyond the scope and without these reasons, then you have the option to approach the writ court, you can challenge the very initiation of audit। और ये इनकम टैक्स का भी जो ऑडिट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया हुआ है, because initiation of audit affects your civil right, so he gets into your business directly, he is affecting your business, that means he has to grant you an opportunity of being heard। पहले वो लिख के देगा आपको कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताओगा क्यों ना ऑडिट कर दिया जाए इस प्रोविजन में, देन यू विल रिप्लाई कि साहब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है देखो, और इसमें क्या मैंने ज्यादा क्या वैल्यू डिक्लेयर गलत करी है, आपने कोई रीजन तो दिया नहीं कि मैंने क्या वैल्यू, कुछ तो प्राइमा फेसाई तो बताओ कि क्या गलती, अगर नहीं है तो दैट इटसेल्फ वुड बी जस्टिसेबल एंड यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से भैया वन दे हैव नॉट given me an opportunity to explain why these circumstances do not exist, and even if he says no they exist, you can go to the court and say no these are not valid reasons। दो उसका लिमिटेड होता है बड़ा परव्यू, लेकिन हो सकता है। अब देखिए ये है सेक्शन 51 जो अभी भी इसी सेक्शन का नाम बदला है, सेक्शन वही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन वैसे ही करता हूँ कि व्हाट इट इज। अभी तक हमने देखा एक प्रोविजन जो स्क्रूटनी का था, पहले स्क्रूटनी कर लिया, उसमें ढूंढा कि अगले ने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। उसके बाद दूसरा प्रोविजन था जहां पर बोलता था ऑडिट हुआ, ऑडिट की कोई फाइंडिंग आई सामने, ये सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन, किसी तरीके से मेरे को पता चल रहा है कि कुछ हो सकती है टैक्स लायबिलिटी। जैसे ही मेरे को पता चलता है कि कुछ टैक्स लायबिलिटी हो सकती है तो मैं वैसे ही कंफर्म नहीं कर दूंगा डिमांड, मेरे को एक स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा। क्या? ये हमारा सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम्स का करंट प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो पॉइंट्स में अग्री करता हूं वो मैं छोड़ दूंगा, उनकी मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो पॉइंट्स पे मुझे लगता है देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट,
सिर्फ वो इश्यूज को मैं शो कॉज नोटिस की फॉर्म में ट्रांसलेट करूंगा, मैं डिटेल रीजन दूंगा व्हाई आई फील दैट दिस अमाउंट शुड बी चार्ज टू टैक्स, या आपने ये क्रेडिट गलत लिया या फिर ये वैल्यू आपने गलत लगाई। वो रीजन देने के बाद मैं उसे अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप मेरे को आओ और एक्सप्लेन करो कि ये टैक्स हम चार्ज क्यों ना करें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला, अब आपको पक्के से पता है कि अब आपके सामने वो वाला नहीं है कि पूरा पिंग पोंग गेम चल रहा है, उसने कुछ कागज मांगा आपने दे दिया, आपने दे दिया उसने नए कागज मांग लिए, अब वो खेल खत्म। वो खेल जो होना था वो पहले स्क्रूटनी के दौरान हो गया या ऑडिट के दौरान हो गया। अब आपके सामने जो इश्यू है वो क्लियर कट क्रिस्टलाइज्ड इश्यू है, अब किसी और इश्यू की वो बात नहीं कर सकता, करेगा तो अलग नोटिस देगा और तब तक पीरियड निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शो कॉज नोटिस के अंदर जो वो बात कहेगा डिपार्टमेंट, दैट वुड बी सपोर्टेड बाय हिज रीजंस। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। I am fighting a case where the show cause notice was issued and the notice says that your drink is not covered under fruit based drink because it is carbonated. This is the reason. And ultimately when order comes, he says your drink is not fruit based drink because it is made out of a vegetable. So what was the notice? That it is a carbonated drink. What is the order? It is a vegetable based drink. Now the order clearly suffers from being beyond the notice. Now he cannot do anything. There are 500 judgments of the Supreme Court that you cannot go beyond the scope of the show cause notice. So what happens is, by following this procedure, the boundary of the game, the cricket ground, you can't start the game in the ground and end it outside the ground. You have to remain and play within the field which you chose. तो वो जो है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ना कोई और इशू ना कोई और रीजन। और ये बात उन्होंने प्रोविजन के अंदर लिखी भी है। उन्होंने लिखा है the amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice. ये तो पहली बात हो गई कि जो बोला था उससे ज्यादा तो मांग ही नहीं सकते। And no notice shall be confirmed on grounds other than grounds specified in the notice. तो ये प्रोसीजर जो है नाउ इट, अब आपका जो इनकम टैक्स वाला प्रोसीजर का जो हमें आदत पड़ा हुआ है वो खत्म, वो नहीं है। ये कंप्लीटली इन्होंने सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वाला प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। अब इसकी जो फर्दर डिटेलिंग है वो मैं थोड़ी बता दूं, ये मैंने बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बता दी। फर्दर डिटेलिंग ये है कि अगर आपका डिपार्टमेंट एलिज करता है कि द टैक्स was not paid on account of fraud or suppression or misrepresentation of facts with an intent to evade payment of tax, then he can frame an assessment within 5 years. From when? From the last date of annual return. But if it is a non-fraud case, he can make an assessment only within 3 years from the last date of annual return. That is the first thing. Second, in case of a fraud case, he can issue you a notice for tax, interest and 100% penalty. In that case, if you pay the tax before the notice comes to you under 51, जैसे उसने आपका स्क्रूटनी किया, आपको बोला, आप मान गए, आपने पे कर दिया, तो आप सिर्फ 15% पेनल्टी दो, काम खत्म, नोटिस ही नहीं आएगा। अगर उसने नोटिस दे दिया, पहले नहीं माने, तो नोटिस देने के बाद आपके पास 30 दिन है, आप 25% पेनल्टी के साथ दे दो, केस इज ओवर। अगर तब भी आपको लगा नहीं लड़ेंगे, एडजुडिकेशन तक पहुंचे, उसने टैक्स इंपोज किया और आप उसके 30 दिन में टैक्स इंटरेस्ट और 50% पेनल्टी दे दिए, तो भी केस खत्म। अगर तब भी नहीं माने तो अपील कर लीजिए। तो उसने तीन स्टेजेस दे दिया आपको,
और नॉन फ्रॉड केस में डिफरेंस कर दिया। अगर आप प्रायर टू शो कॉज दे देते हो कोई बात ही नहीं है, आफ्टर शो कॉज दे देते हो तो भी कोई बात नहीं है, आफ्टर एडजुडिकेशन देते हो तो उन्होंने एक रिड्यूस्ड पेनल्टी लगाई है which they say would be तो अगर आप 30 दिन ऑफ शो कॉज में दे देते हो टैक्स विद इंटरेस्ट तो बात खत्म नॉन फ्रॉड केस में। और अगर आप ऑर्डर आने के बाद देते हो तो इसमें 10% और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, इससे ज्यादा पेनल्टी लगी नहीं सकती। तो आप फाइट करें तो ठीक है, नहीं तो ये पेनल्टी दे और खत्म। सो एक एडजुडिकेशन का प्रोसेस कई स्टेजेस पे आपको ईज आउट भी कर देता है, कई ऑप्शंस भी दे देता है और साथ में आपको एक बड़ा क्लियर फील्ड दे देता है कि आपको इसमें फुटबॉल प्ले करना है। सो दिस वुड बी द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। कोई क्वेश्चन सर? बस सिंपल छोटा सा ये असेसमेंट आपको जल्दी फ्री करने के लिए। सो शुड बी एंड? चलिए, सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी AIRC and thank you all of you for giving me a patient hearing. My colleague says we have made a blog where we have made all these presentations are available on different topics, and we have also prepared small summaries of each topic which we call as 10-point series. So anyone who is interested can visit our blog which is called gstlawindia.com. So it has very brief summary of each topic also. 10-point series we call it. gstlawindia.com. Thank you. I think we should give a big round of applause to the two speakers for the valuable information they shared, and this is a memento which we are presenting on behalf of ICAI.